शांति शांति शांति। So we have already covered first class. We did the introduction to Vedic literature. Second class, Vedic conception of human body, and last class we did Vedic view of self. We are still at the level of Vyashti or individual, right? So today we shall discuss Vedic view of life and death. सबसे पहले जीवन के बारे में कोई डेफिनेशन किसी को मालूम है? किसी भी साहित्य में, किसी भी दर्शन में, व्हाट इज लाइफ आफ्टर ऑल? हम सब जीवित हैं, तो जीवन क्या है? कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं? कोई एम ऑफ लाइफ? व्हाई आर वी लिविंग? और इज इट लाइक दैट वी आर born, we die, that's all? Is there any aim? Life is teleological or it is purposeless? It's not purposeless. There is some purpose. Then what is the purpose? कौन सा लक्ष्य? Lies the ultimate truth or in terms of kind of like theory. So the first thing is, what is Jivana? What is life? And in the Vedas, we have first I'll give you a verse which is beautifully depicting the story of life. This is Ashmanvati Riyate Ashmanvati Riyate Sanrabhadvam उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः। अत्र जहाम ये असन्नशेवाः शिवान् वयम् उत्तरेमाभिवाजान्। This is from Rigveda 10:53, 8. 10th Mandala, 53 Sukta or hymn and 8th verse. मेरे साथ बोलिए, अश्मन्वती रीयते अश्मन्वती रीयते संरभध्वम् संरभध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः सखायः अत्रा जहाम ये असन्नशेवा शिवान् वयम् उत्तरेमाभिवाजान्। So whom are we addressing? Sakhayah, friends. Veda is proclaiming and the address is to the friends, all of us. सखायः, हे फ्रेंड्स, हे मित्रों, उत्तिष्ठत, उठो, प्रतरत, क्रॉस ओवर, पार कर जाओ। किसको? अश्मन्वती, अश्मन कहते पत्थरों को, पत्थरों से युक्त एक नदी, रिवर विद द स्टोन्स इज फ्लोइंग। अश्मन्वती रीयते, पथरीली नदी बह रही है। ए रिवर इज फ्लोइंग with big stones in it. So, sanrabhadvam, get ready. Uttishtata, उठ जाओ. Pratarata, cross over.
And how do we get ready? What do we do? Atra jahama. We leave here, ye, whatever asheva, evil forces, evil feelings, asan, are within us. We must leave the evil intentions, evil feelings, or ignoble thoughts on this side of the river. And what should we carry? Shivan vayam uttarema abhivajan. Whatever is noble, Shiva, Mangala, Shivan Vajan, the noble thoughts, the noble emotions we should, Vayam, we, Uttarema, we should take with us. We should swim across this river with the noble thoughts, leaving aside the ignoble thoughts on this side. So the first line gives you the definition of life. Life is an Ashmanvati Nadi. It's like a flowing river which has big stones in it. Stones in the form of struggles and battles of life. This life is not a bed of roses. It's a challenge given to us, right? So Ashmanvati Riyate Sanrabhadvam Uttishtata Pratarata Sakhayah. You remember the famous clarion call by Vivekananda? Uttishtata Jagrata Prapya Varan Nibodhata. That was from Kathopanishad. Arise, awake, and stop not till all the boons you have been granted, you achieve them. तो देखिए वेद में, ऋग्वेद में वैसा ही वाक्य है. उत्तिष्ठत, उठो, प्रतरता, और पार कर जाओ इस नदी को. और जब नदी पार करनी होती है या पहाड़ चढ़ना होता है तो क्या हम भारी वजन लेके कर सकते हैं? क्या करना पड़ता है? हल्का करना है ना. जितना कम से कम वेट है वो यहाँ भार यहाँ छोड़ दें, और जितना हल्का होकर हम ऊपर चढ़ें या नदी में तैरें. तो वही बात यहाँ पर बता. भार किसका है जीवन में? जितनी अशिव भावनाएं हैं, जितनी अमंगल हमारे अंदर संकल्प हैं, उन सबको यहीं छोड़ दो. किसको साथ लेकर पार करो? शिवान वाजान, जो शिव भावनाएं हैं, जो कल्याणकारी भाव हैं, मंगल संकल्प हैं, उनको लेकर हम इस नदी को पार कर जाएं. ठीक है. नेक्स्ट एक डेफिनेशन मिलती है हमें अथर्ववेद में. अथर्ववेद में कहते हैं, मिलता जुलता है लेकिन उसका शैली अलग है. आरोहणम आक्रमणम जीवतो अयनम. ये पूरा मंत्र नहीं है, उसका एक अंश है. अथर्ववेद का 5वें अध्याय का 30वां सूक्त और उसका 7वां मंत्र. अथर्ववेद 5/30/7. आरोहणम, असेंडिंग, ऊपर चढ़ना. आक्रमणम, और सतत गतिशील रहना, चलते रहना. यही जीवन का अयन स्टोरी है. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ? रामायण में देखिए, राम अयन, अयन मीन्स स्टोरी, स्टोरी ऑफ राम. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ? जीवतो अयनम. जीवन की स्टोरी क्या है? जीवन की कहानी क्या है? आरोहणम, ऊपर चढ़ना. आक्रमणम, और सब ओर से चलते ही रहना. उपनिषद कहते हैं चरई वेति, चरई वेति, चलते रहो, चलते रहो. ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि जो बैठ जाता है उसका भाग्य बैठ जाता है, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो उठकर खड़ा हो जाता है उसका भाग्य उठ जाता है, और जो चलता रहता है उसका भाग्य भी गतिशील होता है. इसलिए अंत में चरई वेति, चरई वेति. तो ये परिभाषा उस उपनिषद वाक्य का स्रोत है. और जो पिछला मंत्र था ऋग्वेद का, वो भी कठोपनिषद के उत्तिष्ठत जागृत, क्योंकि उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग, वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग. उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं
क्योंकि वो वेद का अंतिम भाग है। तो जो भावनाएं वेदों के मंत्रों में हैं, उन्हीं भावनाओं को उपनिषदों ने व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये क्योंकि वेद कोई शास्त्र नहीं है, शास्त्रों में तो लक्षण दिए जाते हैं, ये शास्त्र नहीं है, इसमें तो सब कुछ है, लेकिन हमें ढूंढना है। तो ये दो परिभाषाएं कुछ संकेत देती हैं कि जीवन क्या है। पहली बात कि जहां हम हैं वहीं ठहर जाएं तो वो जीवन नहीं है, जहां हैं उससे ऊपर उठना है, ऊपर चढ़ना है। एक और मंत्र देती हूँ जिसमें रोज ऊपर चढ़ने की बात है, वो नित्य की संध्या में है वो मंत्र। प्रतिदिन सूर्य को देखते हुए वो मंत्र पढ़ना। इसमें एक शंका है कि कौन से पहाड़ को चढ़ना है और कौन सी रिवर को क्रॉस करना है। अश्मनवती, ये तो सब प्रति सिंबॉलिक है। वेद में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये है, सब देयर इज अ डीप सिंबलिज्म। तो जीवन ही एक पथरीली नदी है और ये कॉल दी जा रही है, चैलेंज दिया जा रहा है कि उठो, ये पथरीली नदी बह रही है। तो कोई इतिहास नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, ये सब रूपक हैं, मेटाफर्स हैं। वो है उद्वयम तमसस्परि। स्वः पश्यन्त उत्तरम। देवं देवत्रा सूर्यम ये दैनिक संध्या का मंत्र है। प्रतिदिन सूर्य को देखते हुए पढ़ना है। यहाँ पर इसको अलग करेंगे, उद्वयम, 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 उद्वयम। वयम हम लोग, उत ऊपर, कहाँ ऊपर? तमसः परि अंधेरे से परे, स्वः प्रकाश को, पश्यंत देखते हुए, उत्तरम यहाँ पर है उत, यहाँ है उत्तरम और यहाँ पर है उत्तमम। हम जानते हैं लैंग्वेज में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उत से उत्तर और उत्तर से उत्तम की तरफ हम जाएं। उत माने ऊपर, उत्तर उससे भी ऊपर और उत्तम सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन है? उत्तम ज्योति है। उत्तम ज्योति कौन है? सूर्य है। हम अंधेरे के पार जाना चाहते हैं। फिर वही प्रार्थना उपनिषद की, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। तो देखिए यहाँ पर तमसः परि, अंधकार के परे हम लोग स्वः पश्यंत, प्रकाश को देखते हुए, जो प्रकाश और भी ऊंचा है, उस ऊंचे प्रकाश को देखते हुए देवताओं के देवता, देवताओं के भी देवता सूर्य को अगन्म प्राप्त हो जाएं, जो कैसा है? जो उत्तम प्रकाश है। सूर्य सबसे उत्तम ज्योति है, सबसे ऊंचा प्रकाश है। तो अंधेरे को दूर करते हुए उत से उत्तर की ओर और उत्तर से उत्तम की ओर हम एसेंड करते रहें, चढ़ते रहें। जो अभी हमने पढ़ा आरोहणम, कि जीवन क्या है? चढ़ते रहना, चलते रहना। और वो चलना भी पर्पजलेस नहीं है। कैसे चलना है? क्रमशः, जहां है उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर और फिर सबसे ऊपर, जो उत्तम ज्योति है। अगर आपको याद हो, पिछली बार मैंने बताया था कि 3 लोक माने गए हैं। एक पृथ्वी लोक, एक अंतरिक्ष लोक मिड स्पेस, और एक स्वर लोक या आदित्य लोक, उसको द्युलोक भी कहते हैं, द्युलोक। और ये तीनों लोक पिंड में भी हैं, इस शरीर में भी हैं और ब्रह्मांड में भी हैं। ब्रह्मांड में ये पृथ्वी है,
बीच में अंतरिक्ष है और ऊपर जहाँ सूर्य चमक रहा है वो द्युलोक है। शरीर में यहाँ तक जो है ये पृथ्वी है और मध्य का जो भाग है वो अंतरिक्ष है, क्योंकि अंतः ईक्षते, हम अंदर देख सकते हैं यहाँ पर हृदय का जो लोक है। और ये जो है ये मस्तिष्क का लोक जो है ये स्वरलोक है, द्युलोक है, आदित्य लोक। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो इसी प्रकार शरीर में भी हम नीचे से ऊपर और ऊपर से और ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना मस्तिष्क जो है वही सब विचारों का केंद्र है। प्रकाश का पुंज कहाँ पर है? यहीं पर है। तो उसी प्रकार जैसे पृथ्वी में हम हैं, हमेशा ऊर्ध्वमुखी रहें, हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ें और ऊपर चढ़ते चढ़ते उत्तम ज्योति तक पहुंचे। ये जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं, जीवन की पद्धति। अभी लक्ष्य नहीं बताया, ये जीवन की पद्धति है कि सदा चलते रहना, आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, यही जीवन है। इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? Ma'am, they are talking about spiritual upliftment only, right? एग्जैक्टली अंतरिक्ष में ही सब कुछ है। जहाँ हम अंतस्थ होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जब अपने विचारों को बाहरी जगत से अंदर की तरफ ले जाते हैं, तब हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे समक्ष प्रकट होता है। कठोपनिषद में इस कहानी को, इस बात को बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। तो पहली कहाँ चीज से है ये जो आपने अभी? इसका मुझे रेफरेंस याद नहीं है, क्योंकि ये तो नित्य संध्या में पढ़ते हैं, वो अभी चेक करने से एकदम मिल जाए। ऋग्वेद में ही है, जहाँ तक नंबर मुझे याद नहीं। अब जो बात है कि जीवन की परिभाषा हुई, जीवन का लक्ष्य क्या है? एम ऑफ लाइफ। व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? आजकल के हिसाब से क्या है हमारा जीवन का लक्ष्य? Worldly achievements. नौकरी करना, पैसे कमाना। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये क्या बनेगा, है ना? डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि नेता बनेगा कि अभिनेता बनेगा, यही है। लेकिन वेद ने कहा, ऋग्वेद का ही वचन है, मनुर्भव। मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब मनुष्य बनो का क्या मतलब है? जब मनुष्य का जीवन मिल गया, फिर मनुष्य क्यों बनो? नहीं, अच्छा बुरा नहीं है, विशेषण है ही नहीं। यहाँ तो मैंने जो क्लू आपको पहले भी दिया है, सारे शब्दों के अर्थ कहाँ छिपे हुए हैं? मननशीलता। मनु शब्द कैसे बना है? मन धातु से, मन। और यास्क अपने निरुक्त में कहते हैं मनुष्य कौन है? मनुष्य की परिभाषा देते हैं, मत्वा कर्माणि सीव्यति मनुष्य। मन धातु है तो मत्वा, मानकर, सोचकर, मनन करके, विचार करके, कर्माणि, कर्मों को, सीव्यति, जो करता है वो मनुष्य है। तो मनुर्भव, मनुष्य बनो, अर्थात सोच समझकर कर्म करो, विवेक पूर्वक कर्म करो। हम क्या करते हैं? पहले करते हैं और फिर सोचते हैं। वेद कहता है पहले सोचो और फिर करो, क्योंकि मनु शब्द, अब आजकल तो मनुवादी वो चल रही है सोच, वो मनु का नाम ही कैसे बना है? वो मनु वैवस्वत मनु थे, वो तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। लेकिन वेद में मनु, उस मनु से कुछ लेना देना नहीं है। मनु का मतलब है जो भी सोच समझ कर काम करता है वो क्या है? मनु। एक होता है पशु, वो क्या करता है? पशु क्यों कहते हैं? पश्यतीति पशु। पश्यतीति पशु, जो केवल देखता है वो कौन है? पशु है। जो सोचता है वो कौन है? मनुष्य। और भर्तृहरि का नीति शतक आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना कुछ लोगों ने? श्लोक याद है वो पशु वाला और मनुष्य वाला? वो क्या है? बड़ा फेमस है। अगर अच्छा है कि जंगल में, वन में पशु, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्मः तेल मर्त्य लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
वो तो मनुष्य लोक में पशु ही हैं। ये तो पशुओं का भाग्य अच्छा है कि वो उनका चारा नहीं खा रहे, हालांकि आजकल तो चारा भी खा लेते हैं। और भी कहा आहार निद्रा भयमैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम्। ये 4 चीजें तो मनुष्यों में भी हैं, पशुओं में भी हैं। फिर अलग क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो वो धर्म क्या है? वो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म ये नहीं है। वो धर्म है मनु धर्म, मानव धर्म, अर्थात विचार पूर्वक कर्म करना। यही मनुष्य का धर्म है, जो किसी और योनि में संभव नहीं। कोई नहीं किसी को ये समझ है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई हाथी बैठकर ये विचार कर सकता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई नहीं कर, उनको मिला ही नहीं है ये। अगर आपको वो कहानी याद है ऐतरेय उपनिषद की, जो मैंने शरीर के उसमें दी थी, कि प्रजापति ने शरीर बनाया, घोड़े का शरीर बनाया, तो देवताओं ने कहा नहीं नहीं इसमें नहीं हम जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। फिर हाथी का बनाया, किसी पशु का बनाया, अच्छा नहीं लगा। जब मनुष्य का शरीर बनाया तो उन्होंने क्या कहा? सुकृतम बत सुकृतम, ये तो बड़ा सुंदर है, इसी में हम रहेंगे। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य की योनि है, ये योनि ही विचारशीलता के लिए मिली है। अन्य सारी योनियां भोग योनि है, कि जो जो कर्म कर चुके हैं बस उनका फल भोगना है, वो नया कुछ नहीं कर सकते। दे आर नॉट एडिंग टू देयर कर्मा। जो अकाउंट है हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो केवल सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने फल भोगने हैं इस योनि में वो भोग रहे हैं। केवल मनुष्य योनि में किए गए कर्म हमारे पिछले कर्मों के अकाउंट को थोड़ा सुधार सकते, बदल नहीं सकते, सुधार सकते। तो इसलिए मनुर्भव एक तो ये जीवन का लक्ष्य हुआ। अब ये कैसे होगा? केवल मनन करना काफी है क्या? शरीर की बिल्कुल उपेक्षा कर दें, शरीर का ध्यान ही ना रखें, या केवल शरीर की पूजा करते रहें जो आजकल हो रहा? दोनों करने, दोनों का। तो वेद की जो दृष्टि है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक समन्वित और संतुलित दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ, ए होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। यहाँ पर शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां और फिर आत्मा, इन सब को साथ लेकर चलना, किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी। लेकिन ये सब किसके लिए हैं? बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन्स एंड इवन प्राण, दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ आवर गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ इज द सुप्रीम ट्रूथ। आत्म ज्ञान के लिए ये सब है, तो इनको भी हमें महत्व देना है। कालिदास ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। अगर शरीर काम नहीं करेगा तो आप यहाँ क्लास करने आ पाएंगे या मैं पढ़ाने आ पाऊंगी? नहीं आ पाएंगे। तो शरीर सबसे पहला साधन है जो हमें धर्म आचरण के लिए सशक्त बनाता है। और शरीर के लिए क्या क्या कहा वेदों में वो हम पढ़ चुके हैं सारा, कि वो क्या है। शरीर साधारण वो नहीं है केवल एक आश्रय, एक साधारण अधिष्ठान नहीं है, ये देवपुरी है, ये रथ है, ये वीणा है, ये नौका है, और ये एक क्या है? अयोध्या है। अयोध्या भी कहा है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पू अयोध्या, ये ही अयोध्या है। तो शरीर के लिए तो इतनी प्रार्थनाएं मिलती हैं वेद में कि मेरी वाणी में बोलने की शक्ति हो, आंखों में देखने, वांग आसन नसोह प्राणः चक्षुषश् चक्षु, हर अंग में मेरे शक्ति हो। बहुत सी प्रार्थनाएं। और जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद हम यही प्रार्थनाएं करते हैं कि जो जो मेरे शरीर में कमी है उसको हे अग्नि तुम दूर करो। तनूपा अग्ने असित्वम तन्वम में पाही, मेरे शरीर की रक्षा करो, मेरे शरीर में अग्नि भर दो। अग्नि मतलब ऊर्जा भर दो। तो शरीर के बाद मन, मन के बारे में हमने बात की है शायद या नहीं की, तो शिव संकल्प सूक्त है यजुर्वेद का। बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन ये तो सुप्रीम है बिल्कुल, शिव संकल्प सूक्त।
तन्मे मनः। यजुर्वेद का है, 6 मंत्र हैं इसमें। यजुर्वेद का 36वां या 34वां है शिव संकल्प सूक्त। बचपन में हमें इन 6 मंत्रों में बार बार 6 बार आया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बचपन में हमें याद कराए गए और सोते समय ये 6 मंत्र पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में, और ये बताया था कि अगर ये मंत्र याद करके सोओगे बोलकर तो बुरे सपने नहीं आएंगे। और अब वो आदत बन गई, अभी भी मैं वो 6 मंत्र सोते समय हम पढ़ते हैं। तो शिव संकल्प, शिव का अर्थ आप जानते हैं, शिव अर्थात कल्याणकारी। संकल्प, मन का काम ही क्या है? मन का काम मनन करना नहीं है, मन का काम संकल्प विकल्प करना है। मन निश्चय नहीं करता कभी भी, हमेशा क्या करता है? दुविधा में डाल देता है। मन हमेशा आपके सामने 2 रास्ते खोल देता है, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर। फैसला कौन करता है आपकी? बुद्धि। याद है कठोपनिषद का मैंने आपको एक रूपक दिया था। मन क्या है? बुद्धिम तो सब चीज पिछली याद रखनी पड़ेगी। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या है? सारथी है। और मन क्या है? मनः प्रग्रहमेव च। मन तो लगाम है, वो स्टीयरिंग है। उस स्टीयरिंग का कंट्रोल किसके हाथ में है? ड्राइवर। कृष्ण भगवान क्यों सारथी बने हैं? सारी सेना उधर दे दी और खुद क्या बन गए? क्यों सारथी बन गए? क्योंकि बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, उसी के बल है। यस्य बुद्धिर बलम तस्य। तो इसलिए बुद्धि जो है वो विवेक करती है, निर्णय करती है, किंतु मन क्या करता है? मन तो हमेशा संकल्प विकल्प। संकल्प जैसे ही आप करने लगते हो तो वो दूसरा विकल्प ला देता है। अर्जुन सारी प्लानिंग करके युद्ध करने गया था, ऐसा तो नहीं कि उसको पता नहीं था कि युद्ध होगा, और वहां खड़े होकर धनुष हाथ में उठाना है। उस समय मन ने क्या कर दिया? मन बुद्धि के ऊपर आ गया। कठोपनिषद ने क्या कहा था? जिसका मन बुद्धि के नियंत्रण में रहता है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, और जिसकी बुद्धि मन के निर्णय के अधीन रहती है वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं भटकता रहता है। सारे आजकल जो डिप्रेशन की बीमारी चली है वो अर्जुन के समय में थी। विषाद इज डिप्रेशन, बट अर्जुन's विषाद वॉज नॉट ऑर्डिनरी। वो विषाद योग था। वो जुड़ गया एक ऐसे गुरु के पास, उसको कृष्ण मिल गए, सबको नहीं मिलते। इसलिए विषाद योग क्या बन गया? 18वें अध्याय में कहा प्रसाद मिल गया। और अब हम क्या करते हैं? बस प्रसाद बांटते हैं। वो बांटने वाला प्रसाद नहीं है। प्रसाद मतलब मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मन का प्रसन्न हो जाना, बिल्कुल स्वच्छ हो जाना, निर्मल हो जाना। वो कब होता है? जब बुद्धि मन के ऊपर आ जाती है। लगाम को जब सारथी कंट्रोल कर लेता है तब वो जो है विजय प्राप्त होती है। तो शिव संकल्प सूक्त मन की उत्तम स्थिति के लिए है। विकल्प नहीं आया इसमें। विकल्पों के ऊपर किसकी विजय हो जाए? संकल्प की। संकल्प भी कैसा हो जाए? शिव संकल्प। तो ये यजुर्वेद का पूरा सूक्त है, उसका नाम ही है शिव संकल्प सूक्त। तो जीवन के जीने के लिए सबसे पहले हमें जहाँ हैं वहीं खड़े नहीं रहना, डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना है। ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले शरीर को हमें क्या बनाना है? स्वस्थ बनाना है। यहाँ तक मंत्र में ऋग्वेद में प्रार्थना है। अश्मा, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रही। अश्मा भवतु नस्तनूः। हमारा शरीर न तनुः, हमारा शरीर पत्थर की तरह हो जाए। अश्मा भवतु, चट्टान बन जाए, अर्थात मजबूत हो जाए, मजबूत, सुदृढ़, सशक्त रहे।
हमारा शरीर स्वस्थ रहे और मन कैसा हो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन अच्छे विचारों वाला जी। अश्मा भवतु नस्तनुः, नस्तनुः इसका विग्रह करेंगे, नह नह और तनुः। शरीर के बहुत सारे नाम मैंने बताए थे, कौन कौन से? देही, शरीर, देह, देह, शरीर, काय, तनु, शरीर और 5-6 नाम बताए थे। देह, काया, तनु, शरीर, क्षेत्र। तो तनु भी उनमें से एक है। नह तनु, हमारा शरीर अश्मा भवतु, पत्थर बन जाए, चट्टान बन जाए। और अगर आपको याद हो तो बताया था, वो फिर बताऊंगी, जब विवाह संस्कार में अश्मारोहण एक होता है, लड़की का पैर पत्थर पर रखवाते हैं। और क्यों रखवाते हैं? मतलब because you are kind of overpowering that negative ashma. नहीं, not overpowering, you have to be firm now on words. अश्मा का मतलब ये, ओवरपावरिंग तो मॉडर्न वो हो गई टेक्निक। वो तो स्त्रियां एम्पावर्ड वुमेन हैं, सो दे आर ओवरपावरिंग। Not in that sense. Well, that's very natural. उसके बाद मन के बाद आता है प्राण। आप में से किसी ने सुना है उपनिषद में पंचकोश थियरी है? पंचकोश उपनिषद में आपने तो जरूर कोश, हाँ। कोश होता है अन्नमय, आनंद, सबसे ऊपर आनंद कोश है। हाँ, वही 5 चीजें हम पढ़ रहे हैं। ये जो बॉडी के जो 5 शीट्स हैं, शीट्स हैं, ये है अन्नमय, फिर अन्नमय के बाद मनोमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञान विज्ञानमय और आनंद, आनंदमय। तैत्तिरीय उपनिषद में ये सब आए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कोश हैं, ये कोश। कोश डिक्शनरी वाला कोश नहीं, कोश इज द कवरिंग शीट। तो ये उपनिषद में आया है और हम वेद में वही चीज कर रहे हैं कि पहले शरीर, फिर मन, और अब हम बात करेंगे प्राण की। और उपनिषद में ये बताया है, और जब हम छोटे थे तो हमारी दादी ने उपनिषद क्या, कुछ भी नहीं, पढ़े लिखे नहीं होती थी पहले, लेकिन उनको पता था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और उपनिषद में लिखा हुआ है कि अन्न जब हम खाते हैं तो उसके 3 रूप होते हैं। 3 महीने तक वो एसिमुलेट रहेगा। उन्होंने तो लिखा कि 3 तरह से पकता है। जो इसका स्थूल रूप है, अन्न हम खाते हैं, वो तो मल बनकर निकल जाता है। जो मध्यम है वो हमारे शरीर में वो पाचन के द्वारा सारे में वो बढ़ जाता है, फैल जाता है। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म है, अन्न का सूक्ष्मतम रूप मन बनता है। यो अनिष्ठम तन मनः, वो मन बन जाता है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अभी कौन सा अन्न खा रहे हैं, कौन बना रहा है, कहाँ कैसे पक रहा है, अन्न को उगाना से लेकर वो सारी प्रक्रिया जो है किन भावनाओं से भावित है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और आजकल जो विचारों में इस तरह से हम देख रहे हैं बिखराव है, वो सारा इसीलिए है कि भोजन को हम उस रूप में, वहां तो कहा है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, शुरू यहीं से करते हैं। पहले उसको कहते हैं अन्न ही ब्रह्म है, तो उसने कहा कि ठीक है अन्न ही ब्रह्म है। जो शरीर हमारा अन्न से वो होता है पुष्ट, उसे कहते हैं अन्नमय। आजकल सारा जीवन इसी पर लगा हुआ है। चारवाक भी यही कहते थे, खाना पीना, और आज का भौतिकवाद भी यही कहता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दैट्स ऑल। जब तक जीवन है तब तक सुख से जियो, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ये तो केवल 1/5 है, 20% है ये, और बाकी 80%। और तलाश किसकी है हम सबको?
आनंद आनंद की। की। कहाँ से मिलेगा? जब हमारा फोकस तो सारा यहाँ है, तो मिलेगा क्या? जो खा रहे हैं, जो दे रहे हैं, वही मिलेगा। ये है अन्न और ये है, एक तरफ तो आनंद है और इसका एक नाम और भी है, अन्नाद। अन्न को खाने वाला वो अन्न है, ये अन्नाद है। अन्नाद, देखो अन्नाद और आनंद, जरा सा एन और ए को इधर से उधर करना है बस। तो जब तक हम अन्नाद की श्रेणी में हैं तब तक तो ठीक है, हमें क्या मिल रहा है खाने में? सारा ध्यान जिह्वा पर है, रसना पर है, तो हम अन्नाद की कोटि में हैं। लेकिन अगर चाहिए आनंद तो एन और ए का वो करना पड़ेगा, विपर्य। अन्नाद में ए डबल एन ए डी ए है और आनंद में ए एन डी ए। तो आनंद की खोज है, तो इस अन्नाद की कोटि से ऊपर उठना होगा। अन्न से अन्नाद तक ये एक यात्रा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था वैदिक व्यू ऑफ सेल्फ में, कोहम से सोहम तक की यात्रा। यहाँ अन्न से अन्नाद नहीं, अन्न से आनंद की यात्रा। तो अन्न को ब्रह्म समझकर उसको भी उसी, जिसको आजकल कह रहे हैं माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल लिविंग, वो सारा यही। तो हमने अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, मनोमय कोश यानी सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश भी सूक्ष्म शरीर है, विज्ञानमय कोश, प्राणमय की पहले बात करें। प्राण क्या है? उपनिषदों में कहानियां आती हैं, इंद्रियों के बाद प्राण। तो मन एक इंद्रिय है, मन अंतर इंद्रिय है, लेकिन है वो भी एक इंद्रिय। उसके बाद है प्राण। प्राण जो है वाइटल एयर, वाइटल एयर, एनर्जी। शरीर में जो प्राण, हम कहते हैं प्राण निकल गए, तो इसका मतलब प्राण मन और इंद्रियों से भी परे है। और वेद में केवल प्राण नहीं, प्राण और अपान दो की बात की है। प्राण और अपान, सारा जो पतंजलि वो रामदेव जी सिखा रहे हैं प्राणायाम, वो क्या है? प्राण और अपान का संतुलन। वेद में दो देवता आते हैं, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, उनको वैद्य कहा जाता है कि वो देवताओं के दो वैद्य थे। They were the physicians of gods. They were not physicians. Actually, anybody who can control the vital airs within himself, प्राण एंड अपान, वो सब फिजिशियन है। अगर हमें ही ये आ जाए कि कैसे प्राण और अपान को नियंत्रित करना है, तो मानो स्वस्थ रहने का उपाय हमें मिल गया है। मन अन्न से सूक्ष्म है, प्राण मन से भी सूक्ष्म है। तो ये अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, बहुत अथर्ववेद में तो पूरे पूरे प्राण सूक्त मिलते हैं हमें, जहाँ प्राण और अपान की शक्ति बताई गई है कि ये स्वस्थ रहें। और उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? ये है बुद्धि। विज्ञान का यहाँ मतलब साइंस नहीं है, विज्ञान का मतलब है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल लेवल। और आपने उस दिन जब पुनीता जी ने क्लास में बताया कि बुद्धि के तो बहुत सारे स्तर हैं, और वेद में गायत्री मंत्र आप जानते हैं, भारत में उसका बहुत महत्व है। क्यों है उसमें? वो उसको महामंत्र बताया गया। और क्यों? ये देखा, मतलब तो इसकी स्टडी भी आई थी कि चेंजेस द ब्रेन स्ट्रक्चर आल्सो, और मतलब उससे बहुत सारे अंतिम जो है धियो यो नः प्रचोदयात्। यो जो वो सविता देव है, वह नः हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् सन्मार्ग की ओर ले जाए। हम क्या करें वो पहली लाइन में है, वो क्या करे वो दूसरी पंक्ति में है। ओम तत्सवितुः, वो सविता है। सविता यानी सूर्य। कौन सा सूर्य? क्रिएटर, सविता जो उत्पन्न करने वाला है। सारे संसार का जनक कौन है? वो क्रिएटिव एनर्जी है। सूर्य केवल दिखने वाला चमकता हुआ गोला नहीं है,
वो क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक है। तत्सवितुः वरेण्यम, वरेण्यम मीन्स वर्णे के योग्य, चुनने के योग्य। भर्गः, भर्गः इज द लाइट, तेज। भर्गः देवस्य, उस देवता के तेज पर धीमहि हम ध्यान लगाएं। Let us meditate on the divine light of the Creator God. Why should we meditate? So that He can lead our intellects on the right path. धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या शब्द है? धी, बुद्धि से। धी धारणावती बुद्धि। बुद्धि के कई प्रकार हैं, धी, धिषणा, मति, प्रज्ञा, मेधा। धी कौन सी है? धारणावती बुद्धि, जो रिटेंशन पावर है, कि जो कुछ हम सुने पढ़ें उसको हम रिटेन कर पाएं, वो है धी। तभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए, सीकर्स के लिए, सबके लिए अच्छा और है। जब गायत्री मंत्र ठीक से पढ़े तो बॉडी में वन कैन फील, एटलीस्ट आई कैन फील वाइब्रेशंस इन द Exactly. एंटायर बॉडी। तो उसका- हल्की वाइब्रेशन, स्पंदन सा होता है बॉडी। बॉडी भी हीट अप होती है क्या जब व्हेन वी रीड द गायत्री मंत्र, तो बॉडी हीट अप होती है? That depends how you recite it. means Actually when तो वो it's- करना चाहिए सूर्य को देखते हुए। सूर्य नहीं है सामने तब भी हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सूर्य के ऊपर। मतलब हमारे ध्यान में सूर्य होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं। और जब हम तेज के किसी भी रूप पर, ज्योति की एक लौ पर, किसी पर भी मेडिटेट करते हैं, तो हमारे शरीर की सारी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होकर कंसंट्रेट हो जाती, एकाग्र हो जाती है, पूंजीभूत हो जाती है। तो ये विज्ञानमय कोश है। बुद्धि क्या करती है? जो मन के संकल्प विकल्प थे उनको मिटा देती है। बुद्धि इज लाइक अ जज, और मन जो है वो आप एडवोकेट्स की तरह है, वो संकल्प विकल्प पेश करता है। दो सारे आर्ग्यूमेंट्स, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट दे कैन नॉट प्रोनाउंस द जजमेंट। द जज ओनली कैन प्रोनाउंस द जजमेंट। वो बुद्धि ही कर सकती गायत्री मंत्र का अर्थ कैसे लिख सकते हैं? जी। गायत्री मंत्र का एक पूरा अर्थ, एक हाँ, मैंने अभी बताया। पहले जो 3 व्याहृतियां हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो 3 जोड़ी गई हैं, ये व्याहृतियां कहते हैं। 3 ग्रेट अटरेंसेस। व्हाट डू दीज रिमाइंड अस? फिर वही 3 लोक वाली बात। भू पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, और स्वः स्वर्ग लोक, द्युलोक, आदित्य लोक। तो हमने ये 3 बोल के क्या किया? ओम भूर्भुवः स्वः। हमने ब्रह्मांड की विशालता का ध्यान किया, उस ब्रह्मांड के नियंता परमात्मा का ध्यान किया कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, पृथ्वी से लेकर द्युलोक पर्यंत ये समाया हुआ है, फैला हुआ है। फिर अब हमने अपनी उस शक्ति, उस विचार शक्ति को पहले तो पूरे ब्रह्मांड का एक प्रकार से स्मरण कराया, अब हम उसको ले आए। वो है, एक है प्रसारण और दूसरा है आकुंचन। हम पढ़ते हैं ना, तो एक्सपेंशन किया पहले अपने विचार का, और फिर आकुंचन करते ही समझ आया कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम क्या हैं? एक तिनका भी नहीं, एक तिनका भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें फिर इसी ब्रह्मांड के प्रकाश पुंज पर, और वो ब्रह्मांड के प्रकाश पुंज की बात हमने पहले भी की, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम। सूर्य के भी बहुत से नाम हैं। वेद में सूर्य को आदित्य भी कहा, सविता भी कहा, सूर्य भी कहा, तो उनमें से सविता नाम दिया, इसलिए इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के सविता रूप का यहाँ पर हम, सुबह सुबह लालिमा वाला वो जो सूर्य है, जो उत्पन्न करने वाला है, उत्पन्न करने वाला, सविता उसको कहते हैं। प्रसविता सविता, जो उत्पन्न करता है, उसके वर्णीय तेज पर हम ध्यान केंद्रित करें। और कब करेंगे केंद्रित? सूर्य को देखेंगे तभी तो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रातः काल सूर्योदय के समय उठकर हम सूर्य के दर्शन करें और उस समय जो उसका तेज है उस पर हम ध्यान केंद्रित करें, तो बुद्धि क्या होगी? पहले हम लोगों के जो दादा दादी कहते थे, आज कैसे आए? नहीं आई थी। हाँ,
ये निर्मला है, ये पढ़ा रही हैं बहादुरगढ़ में, PhD हो ही गई थी इनकी पिछले सेमेस्टर, डॉक्टर बन गई। तो उस समय उठकर यदि हम सूर्य के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बुद्धि कैसी होगी? कहते सुबह सुबह उठ के पढ़ो तो याद जल्दी होता है, ये बोलते थे, और ये आजमाई हुई चीज है, आप भी आजमा सकते हैं। मैंने 11वीं 12वीं में आजमाई थी, मेरे 10वीं में 64% नंबर आए थे और बहुत मैं दुखी हुआ था। और 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं में रोज सुबह 3:30 बजे उठता था, हाँ। 5 साढ़े 5 तक पढ़ता था। हाँ, फिर सो जाते। नहीं, उस टाइम नहीं सोता नहीं, था, अगर सो भी जाओ तो याद होगा। पर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही किया। फिर इम्प्रूवमेंट हुआ। दोनों सालों में मैंने इंग्लिश में टॉप किया था। देखिए, कितने भी बड़े जो विचारक हैं और जितने बड़े जो संत हैं, महापुरुष हैं, वे सब ब्रह्म, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, प्रातः काल, प्रत्यूष काल भी कहते हैं, प्रभात वेला, प्रत्यूष काल। तो उस समय उठकर सूर्य की जो लालिमा, वो उषा कहलाती है। सूर्य से पहले जो लाली छाती है उसको उषा, और वेद में उषा के सौंदर्य के इतने मंत्र हैं। एक तो इतना प्यारा मंत्र है जो आजकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती हैं वो सब फेल हो जाएंगे। वहां तो कहा एशो दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी, ये द्युलोक की बेटी आ गई सामने, और क्या पहना हुआ है इसने? तो प्रकाश की रोशनी की साड़ी पहनी हुई है, ज्योतिर्वसाना, ज्योति को ही पहना हुआ है। समनम पुरस्तात् ऋतस्य पंथा मन्वेति साधु प्रजानतीव नदिशो बिनाति। इतना सौंदर्य वर्णन है उषा का। कालिदास की शकुंतला का जो सौंदर्य वर्णन है, उषा के सामने कुछ नहीं है। ये कहाँ का है? ये ऋग्वेद का है, उषा सूक्त। इतना सुंदर है, और बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो ये कब हो पाएगा? अगर सुबह सुबह उठ, आप में से कितनों ने उषा के दर्शन, इसको उषा पान भी कहते हैं, उषा का पान, सुबह सुबह ये डिवाइन नेक्टर को चखना जैसे होता है। तो ये सारी प्रकृति के प्रांगण में हुआ है ये सब। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि नदियों के किनारे और गुफाओं के बीच बैठकर ये धी जो है ब्राह्मणों की, विद्वानों की बुद्धि वहीं उपवरे गिरिणाम नदी नाम च संगथे धिया विप्रो अजायत। ये जो धी है विद्वानों की, वो नदियों के किनारे और गुफाओं के बीच में ही प्रखर होती है, क्योंकि वहाँ केंद्रित होते। हम कहाँ रहते हैं? चारों तरफ एक तो पॉल्यूशन का पूरा वो बना हुआ गुबार, फिर उसमें टीवी, व्हाट्सएप, वाईफाई, ये सब हमारे वातावरण में वाइब्रेशन भरी पड़ी है, शोर, दुर्भावनाएं, विकल्प, पता नहीं क्या क्या। और उस कारण से हम कहाँ मेडिटेट करेंगे और कहाँ ऐसे उत्तम विचार, और फिर उसको जानते नहीं, उसको देखते नहीं, उसको पढ़ते भी नहीं। कम से कम ऐसे विचार यदि पढ़ाए जाएं, बताए जाएं कि प्रकृति के साथ उनका कैसे तादात्म्य था। तो बात हम कर रहे थे बुद्धि की। शरीर, मन, प्राण, बुद्धि और अंत में है आनंद। किसको मिलता है? एक शब्द है सुख। सुख कैसे बना है? आकाश नहीं, ख आकाश भी है, लेकिन यहाँ पर आकाश नहीं है। अच्छा, कठोपनिषद में दूसरी वल्ली या तीसरी वल्ली का पहला ही मंत्र है, परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ख क्या है? ख है इंद्रिय। विधाता ने इंद्रियों को कैसा बनाया है? परांचि बहिर्मुखी, खानी इंद्रियों को परांचि खानी व्यतृणत बनाया है स्वयंभू ने, विधाता ने। इसलिए वो क्या करती हैं? तस्मात् परांग पश्यति, वो बाहर ही बाहर देखती रहती हैं। नान्तरात्मा, अगर ये दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो खोलेंगे, अंदर खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे ना। बनाया ही ऐसा दरवाजा कि वो खुलता है बाहर की तरफ। जैसे ही खुलता है क्या दिखता है? बाहर का जगत। बच्चा पैदा होता है छोटा सा, पहले तो आंख बंद ही रखता है, फिर वो आंख खोलता है, धीरे धीरे चीजों को देखता है, और 3 महीने तक
पहले के बच्चों की तो नजर टिकती नहीं थी, अब जल्दी टिक जाती है, कलयुग है। अभी तो एकदम पहले 3 महीने तक बच्चे की दृष्टि किसी विषय पर टिकती नहीं थी और अभी बहुत जल्दी देखने लगे हैं। तो वो इंद्रियां जो हैं जैसे ही विषयों के संपर्क में आती हैं उनका स्वभाव है बहिर्मुख। तो ख क्या है और सुख, जिसमें इंद्रियों को अच्छा लगे वो क्या है सुख। और आनंद क्या है, संस्कृत वाले बताएं। आ माने समन्तात नंदयति समन्तात नंदयति इति आनंद, सब ओर से जिसमें खुशी ही खुशी हो। समन्तात नंदयति इति। इंद्र सुख में क्या होता है, हम आंख से टीवी देख रहे हैं, ठीक है, देखते ही जा रहे क्योंकि बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, बहुत खुश हो रहे हैं। और फिर क्या होगा, बच्चे देखते हैं छोटे छोटे दिन रात टीवी देखते हैं, फिर क्या होता है 6 साल के बच्चे को भी चश्मा चढ़ जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो इंद्रियों का क्या होगा कि एक तरफ सुख मिलेगा लेकिन दूसरा उसकी क्या होगा, दुष्परिणाम होगा। अगर खाएंगे हम अपने पसंद की चीज, खाते जाएंगे क्या होगा, जिह्वा को तो अच्छा लग रहा है लेकिन पेट क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह कान में वो लगा के आजकल रखते हैं, ब्लूटूथ लगा के रखते रहते हैं। मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ हर समय कान में वो लगा रहता है, तो कान तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी सुनने की सेंसेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियां जो हैं उनकी एक सीमा है। तो सुख जो है वो केवल ऐन्द्रिक होता है, सेंशुअल प्लेजर इज सुख, आनंद इज एक्सटेसी, ब्लिस, आनंद जिसमें कहीं भी दुख है ही नहीं, समन्तात, सब ओर से खुशी ही खुशी है, वो है आनंद। तो आनंदमय जो कोश है वो कौन है, वही आत्मा है, वो आत्मा का क्षेत्र है, दैट्स द रियल्म ऑफ स्पिरिट। वहां पर इंद्रियां सब तृप्त हो चुकी हैं, इंद्रियों से ऊपर वी हैव ट्रांसेंडेड ऑल दीज लेवल्स, एंड दिस ट्रांसेंडेंस is the aim of life in Vedic view. Mind you, transcending, not ignoring, not neglecting. ये नहीं कि हम इनको बिल्कुल वो करके बैठ जाएं, आंखें जबरदस्ती अगर आप बंद करके किसी को बैठा देंगे, कान में रुई डाल देंगे और उसका मन शांत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। So we have to ourselves transcend one by one and reach the realm of bliss. तो अगर आनंद तक पहुंचना है तो क्या करना होगा, अन्न खाना छोड़ना नहीं है, लेकिन कैसे खाना है। आयुर्वेद में वो प्रश्न आता है ना कि एक पक्षी बैठा हुआ था पेड़ पर और मुनि जा रहे थे, तो उस पक्षी ने कहा क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ जिसमें रोगियों की चिकित्सा होती है। तो उसने कहा ठीक है, सवाल का जवाब दो, कोरुक कोरुक कोरुक, ये है कोरुक, अर्थात ये बीच में हो जाएगा कह अरुक। निरोगी कौन है जिसको रोग नहीं है, कौन है जो स्वस्थ है, 3 बार पूछा, कोरुक कोरुक कोरुक। तो उन्होंने जवाब दिया हितभुक, मितभुक और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऋतभुक। हितभुक जो हितकारी है वो खाने वाला, जो फायदेमंद चीज है वो खाना हितभुक। लेकिन फायदेमंद है तो कहीं ज्यादा ही ठूसते चले जाएं वो भी ठीक नहीं है। मितभुक लिमिटेड खाना, क्वांटिटी शुड बी सीमित। और तीसरा ऋतभुक नियम से खाना, एक दिन खा लिया 6 बजे, दूसरे दिन खा लिया 12 बजे। आजकल तो यही होता है, किसी का खाने का कोई टाइम नहीं है, नहीं है। और पहले घरों में टाइम होता था। हमारे तो एंसेस्टर्स, मेरे दादा ताऊ पिताजी बिजनेसमैन थे, लेकिन वो दुकान बंद करके खाना खाने आते थे 1 बजे घर में। आजकल काम पहले है, सारी चीजें पीछे, लेकिन वो काम तो जीवन का एक अंश है, वो जीवन नहीं है। तो हमारा जो बैलेंस है वो लूज हो गया है। साइंस से आजकल की साइंस में भी आया है बॉडी क्लॉक। एग्जैक्टली
तो वो बॉडी क्लॉक इज अट्यून टू नेचर. हमारी आवर बॉडी क्लॉक इज अट्यून टू नेचर, सूर्य के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको खराब कर देते हैं. बिग बार उसको तो सेट कर लेते हैं ना, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं. तो वैदिक जीवन दृष्टि और वैदिक व्यू ऑफ लाइफ, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इज होलिस्टिक, integrated view of life, and it focuses upon all the aspects of life, not only on the aspects of individual but also on the aspects surrounding us. उसमें नेचर भी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पर्वत, ये सूर्य, वर्षा, अग्नि, वायु, विद्युत, ये सब उसमें समन्वित है. इन सब के साथ तादात्म्य में कर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, शांति पाठ आपके पास है, द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, कौन सी चीज छोड़ी उसमें, क्योंकि जब तक सब जगह शांति नहीं होगी तब तक यहाँ शांति. अंत में कहा सा माँ शांति रहेगी, वो शांति जो सारी जगह है वो मुझ में भी आ जाए. पहले ये नहीं कि मुझे शांति आ जाए, क्योंकि जब तक सब जगह ब्रह्मांड में शांति नहीं होगी तब तक पिंड में नहीं होगी, और जब तक पिंड में शांति नहीं होगी सारा विश्व शांत है, लेकिन एक ट्रम्प के मन में कुछ आ जाता है युद्ध करने का, वो कीड़ा, तो क्या होगा. पिंड से ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए दोनों तरफ संतुलन होना है. ये सब जुड़ा हुआ है, कोई भी वस्तु किसी से अलग नहीं है. अलग हैं लेकिन अलग होकर भी सब एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं. तो ये तो था वैदिक व्यू ऑफ लाइफ इन अ नटशेल. इट इज रियली इम्पॉसिबल टू गिव यू द होल आइडिया ऑफ इट, बट जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट. अब आते हैं कि व्हाट इज द व्यू ऑफ डेथ, बिकॉज लाइफ एंड डेथ, दे आर द टू एंड्स of the same stream. एक ही धागा है, उसके दो छोर हैं, एक जीवन है तो दूसरा मृत्यु है. पहले इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए. इनमें जो हमने बात की अभी तक क्लियर है, कुछ पूछना है तो पूछिए. मेरे को ये है, जैसे हम दिस वेरी वेरी अगेन हियर एंड नाउ, कि ठीक है जीवन स्ट्रगल है, अपनी खराब थॉट्स को छोड़ते जाओ और अच्छी थॉट्स को साथ लेते जाओ जब भी यात्रा चल रही है पूरी, ठीक है. पर इसमें Where does the today's thing fits in कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मुझे पैसे कमाने हैं. There are many other things which come into the place. जो यात्रा को के स्टेशंस हैं एक तरीके से, मे बी स्टेशन भी नहीं है, वो स्टेशन भी चलते रहते हैं. हाँ. मोबाइल स्टेशन है. वो तो अश्मनवती, सबसे पहला शब्द तो वही डाला ना, कि बाधाएं भी हैं, इसीलिए वो पथरीली नदी है. सीधी एक नदी, पहाड़ी नदी जो होती है वो पथरीली होती है ना, पहाड़ से चलती है, बहुत सारे पत्थर उसमें गिरे रहते हैं, तो वो फ्लो एकदम इवन नहीं है, अनइवन फ्लो है. पता नहीं कब कहाँ कौन सी रुकावट आ जाएगी. हम क्या कर सकते हैं, संरबध्वम, पहले तो तैयार हो जाओ. ये सोच कर कि जीवन इतना आसान नहीं है, कठिनाइयाँ आएंगी. और जो फिलॉसफी हम पढ़ते हैं, अगर थोड़ा जो दर्शन पढ़ते हैं, तो ये जीवन, ये शरीर क्यों मिला है, सुख दुख का भोग करने के लिए मिला. वहाँ यही बताया है ना, शरीर क्या है, सुख और दुख का अधिष्ठान है, वहीं पर रह के भोगना है. तो कहीं डिनायल नहीं है कि आप प्रोफेशन से दूर भागें या उसको फॉलो ना करें, लेकिन असली बात बस वही है कि एक संतुलन बनाए रखें इन सब एस्पेक्ट्स, शरीर के बीच, मन के बीच, प्राण और बुद्धि और आत्मा. ये जो 5 हमारे शरीर के घटक हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन 5 में हम एक संतुलन बनाए रखें बस. और एक बात कि हम अपनी जो अशुभ भावनाएं हैं हमारे मन में और हर एक के मन में, ये जो देवासुर संग्राम है कहीं नहीं होता है, किसी मैदान में नहीं लड़ा जाता, वो सारे समय हम सबके भीतर चलता रहता है. कठोपनिषद ने उसको कह दिया 2 रास्ते हैं, एक श्रेय का रास्ता है और एक प्रेय का रास्ता है.
तो ये भी दोनों हर समय खुले रहते हैं। अब हमें किधर जाना है, बस यही एक दुविधा है। तो ये वेद की दृष्टि या उपनिषदों का उपदेश केवल क्या करता है, वो रास्ता चुनने में हमारी मदद करता है। अंधेरा रास्ता है, उस पर थोड़ी सी लाइट वो दे देते हैं, बाकी तो हर एक को अपना चुनाव खुद करना है। कृष्ण भगवान ने उसको पूरे 700 श्लोक सुनाए और अंत में कह दिया जो करना है वो करो। यथेच्छसि तथा कुरु। और वो पहले तो खूब बहस कर रहा था, लेकिन अंत में सब सुन के जब उन्होंने ये दे दी छूट कि जो चाहे करो, तो कहता करिष्ये वचनम तव, अब तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन ये शुरू में नहीं कह रहा था, शुरू में जब वो बोल रहे थे तो वो सवाल जवाब कर रहा था। तो बस केवल एक मार्गदर्शक के रूप में हम इन विचारों को अपने मन के पृष्ठभूमि में रख सकते हैं। आज के जीवन से या किसी भी काल के जीवन से इनका कोई विरोध नहीं, क्योंकि किसी भी युग में ये समस्या तो रहती है। इसीलिए गीता हर युग में प्रासंगिक है, इसीलिए उपनिषद हर युग के लिए रेलेवेंट हैं, और इसीलिए वेद प्रत्येक काल में हमारे लिए ग्राह्य है। ठीक है, अब जैसे जीवन है ऐसे ही मृत्यु है। जीवन हमें अपने आप से नहीं मिला है, हम चाहें तो हमें मिल जाए ऐसा नहीं है। जीवन और मरण दोनों जो हैं वो हमें मिले हैं, दे आर गिवन, वी हैव नॉट चोजन देम, इजंट इट। कब जीवन मिलेगा, कब से जन्म होगा, कब मृत्यु होगी। अब जन्म को तो आज के डॉक्टर्स फिर भी थोड़ा वो करने लगे हैं, डेट तक फिक्स कर लेते हैं, उसी डेट को पैदा करना है, सिजेरियन करेंगे। लेकिन प्रकृति ने ये दोनों निर्णय अपने पास रखे हैं। लेकिन मृत्यु को तो अभी भी वो प्रलॉन्ग कर देते हैं, बस वो वेंटिलेटर लगाकर, लेकिन मृत्यु तो हो चुकी होती है जब शरीर के सब अवयव काम करना छोड़ चुके हैं। तो वो जीवन नहीं है जिसको वो लटकाए रहते हैं मशीनें लगाकर। क्या वो जीवन है? वो जीवन नहीं है, वो केवल शरीर को एक ऑब्जेक्ट की तरह से वो रखे रहते हैं और उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाते रहते हैं। तो मृत्यु और जीवन ये दोनों एक ही सत्य के दो सिरे हैं। उनमें से जो मृत्यु है, जीवन में तो हमें खुशी होती है, और मृत्यु से क्या होता है, डर लगता है ना। सबसे बड़ा डर महाभय, मृत्यु को कहा जाता है महाभय, सबसे बड़ा भय है, क्योंकि और सारे भय का उपाय है, इस भय का कोई उपाय नहीं। तो वेद में मृत्यु को पार करने का भी रास्ता बताया। किसी और साहित्य उपनिषद में आपने पढ़ा है अमृतत्व की बात, तो यहाँ पर एक मृत्यु है, एक अमृत है। ठीक है, और बीच में है अति मृत्यु। ये तो सत्य सनातन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो होगा ही होगा, अटल नियम है, सृष्टि का अटल नियम है मृत्यु। मृत्यु कैसे बना है? मृत धातु और यू, मृत शब्द मृत मिट्टी और यू धातु है, यू माने मिला देना, मिट्टी में मिल जाना, ये मृत्यु है। और एक मंत्र है यजुर्वेद का, वो कहता है तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तमेव विदित्वा, उसी को जानकर, अति मृत्युम एति, मृत्यु को पार पाया जा सकता है। ज्ञान ही मृत्यु को पार करने का एकमात्र साधन है। तमेव विदित्वा, उसी को जानकर, अति मृत्युमेति, मृत्यु को पार पाया जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते
अयनाय, इससे पार पाने का और कोई रास्ता नहीं। तो कौन सा रास्ता है? विदित्वा, विदित्वा जान कर, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। और ईशोपनिषद कहता है विद्यया विन्दते, विद्यया अमृतमश्नुते, विद्या से अमृत को पा लेते, अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो वेद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल जन्म लेना, मर जाना ये नहीं है लक्ष्य, अपितु इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में अमृतत्व को पा लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। वेद में मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष शब्द भी नहीं आया है। भारतीय के जो बाद के दर्शन है उनमें तो मोक्ष आ गया, वेद में मोक्ष की बात नहीं है, वहां तो जीने की बात है और मरने की बात है। लेकिन मृत्यु यद्यपि अटल है, फिर भी हम उसको पार कर सकते हैं। और कहाँ पहुंच सकते हैं हम? नहीं तो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं मृत्यु और माँ अमृतम गमय। और मृत्युंजय मंत्र जिसका हम पारायण करते हैं, क्या है वो? वो कि हम जो रोज त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीय, मुझे मृत्यु से मुक्त करो, माँ अमृतात्। अमृत से मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति किससे चाहिए? मृत्यु से। अमृत से तो क्या चाहिए जी? नान्य पंथा, पंथा न अन्य, कोई दूसरा नहीं, अन्य न, कह अन्य न, पंथा, पंथा रास्ता, अन्य पंथा न विद्यते, है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अयनाय, इसको पाने के लिए, किसको पाने के लिए? अति मृत्यु, मृत्यु को पार करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। वो क्या है? तमेव विदित्वा, उसको ही जानकर। किसको? नहीं, वो अल्टीमेट को रियलाइज करना। परम ब्रह्म, परमात्मा। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, उस परम सत्य को जानकर। और वो कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, कहाँ है? हमारे ही अंदर है। महाभारत ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। महाभारत कह रहा अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। अमृत भी हमारी देह में है और मृत्यु भी हमारी देह में है। कैसे, कहाँ तक पहुंचना है? मृत्युमापद्यते मोहात्, मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते मृतम। अगर मोह में पड़े रहोगे तो मृत्यु के जाल में फंस जाओगे, और सत्य को जान लोगे तो अमृत तक पहुंच जाओगे। महाभारत को भी भारतम पंचमो वेद, वो पांचवा वेद कहा जाता है। पूरा उसमें एक पर्व है, मोक्ष धर्म पर्व। लक्ष्य क्या है? सर को 1 मिनट क्लास में आना। हाँ, यहाँ आ जाए क्लास में, जरा हमारी क्लास की भी हालत है। वो बुला रहे हैं तो इससे अच्छा क्लास की भी तो हालत देखी ना क्या है। तो मृत्यु से अमृतत्व तक जाना, इतने मंत्र मिलते हैं। जैसे मैंने बताया खुद महामृत्युंजय मंत्र, और हम सोचते हैं कि मृत्यु को जीतने का रास्ता है। मृत्यु को कोई जीत सकता है? कठोपनिषद में नचिकेता मृत्यु के घर पहुंच गया था यमराज के, और यमराज ने उसकी खूब सेवा की, खूब खातिर की, सारे प्रलोभन भी दिए, लेकिन वो नहीं माना। उसको क्या चाहिए था? मृत्यु का रहस्य। उसको मृत्यु का रहस्य चाहिए। इसलिए हम नचिकेता को तो जानते हैं, याद रखते हैं। उसके पिता का नाम याद है? वो जिन्होंने किताब पढ़ी है उनको याद है, लेकिन कोई नहीं, बाकी लोग भी नचिकेता को जानते हैं। मैत्रेयी का नाम सबको याद है। याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी कौन थी? वो तो तुमने तो पढ़ी और पढ़ाई है ना। अब ये सब संस्कृत की टीचर्स हैं। तो जो लोग तुम तो मैत्रेयी कॉलेज में पढ़ाती हो, मैंने भी पढ़ाया, इसलिए
लेकिन आम लोग वहाँ भी पूछते हैं, मैत्रेयी कॉलेज में भी पूछते हैं कि क्यों इसका नाम मैत्रेयी है। क्योंकि जब याज्ञवल्क्य ने अपना संन्यास लेने का फैसला किया और अपना पैसा जो है, ये हमारी क्लास है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं भारतीय विद्या भवन के, आपने नरसिंहा जी जिनके बारे में बता रही थी, उनके साथ दूसरे तो ये अभी तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी मैंने कहा आप क्लास में देखें। एक क्लास तो मैंने देखा हुआ है, नहीं, और कितने लोग आ रहे हैं, नहीं तो कितनी आपको नया कमरा दे दिया प्रॉब्लम क्या? अभी तो उसमें कोई फर्नीचर नहीं है। हर चीज में थोड़ा टाइम तो लगता है। बिल्कुल, तो लेकिन क्लास में आप इन लोगों से मिले आप? नहीं, वो तो आपका बचपन है, आपने मुझे बुलाया, पर प्रश्न इस बात का है कि भाई ये कोई बिजनेस क्लास थोड़ी है, 2 मिनट में सब खरीद के आ जाएगा। अभी ऑर्डर दिया है, हो जाएगा। तो मैंने इन लोगों को आपके बताया, कमरे खाली करा दिया है, इतना हमने बड़ा इनको कमरा दे दिया बताया। आपको, यहाँ आने की जरूरत नहीं भाई, हो जाएगा। हमारे आप लोग इनकन्वीनियंस के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, पर प्रश्न इस बात का है कि देखते हुए एक नया कपड़ा पूरा हमने आपको दे दिया, उसमें क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, कैसा जाएंगे उसमें? सर इसी सत्र में मिल जाएगा, जी, इसी सत्र में मिल जाएगा। इसी सत्र में नहीं, इसी महीने में मिल जाएगा, और नहीं तो 15 दिसंबर तक हो जाएगा। देखिए ना, ये भवन है, ये कोई बिजनेस क्लास नहीं है, ना सरकारी अनुदान है ना कोई। रिलाय नहीं, सरकार में तो इतना भी काम नहीं होता। मैं तो 37.5 साल रहा हूँ गवर्नमेंट में, इतनी जल्दी नहीं होता। अब वो मोदी जी के टाइम में होने लगा, बात दूसरी है, पर पहले नहीं होता। पर ये कोई रिलायंस कंपनी थोड़ी है, आज मेरा वो क्या नाम था इनके पिताजी का, मुकेश जी के, धीरू भाई धीरूभाई अंबानी ने इधर कहा था बढ़ा, उधर से कस्टम का ऑर्डर ले लिया फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो तो नहीं होता। जो लोग, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग जानते हैं कि ऐसे धीरूभाई अंबानी करोड़पति बन गए, हजारों करोड़पति बन गए। तो ऐसा है, थोड़ा सा हमें क्षमा कीजिए, आपने अगर इसीलिए बुलाया तो हम आपसे नहीं नहीं, इसलिए नहीं, इनसे मिलने के लिए बुलाया। जब फ्री हो जाए तो आ जाओ। मेरी 4 बजे तक है सर, अरे कोई बात, जब आप फ्री हो तो आ गया। मैंने तो मिलने के लिए बुलाया। चलिए, तो हम कहाँ थे? मैत्रेयी कि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी संपत्ति 2 भागों में बांटी और कहा कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। दोनों पत्नियां हैं, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। कात्यायनी उसको कहा है साधारण प्रज्ञा या स्त्री प्रज्ञा, कि स्त्री को जो चाहिए उसको मिल गया, अपना भाग, वो संतुष्ट हो गई। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। उसने पूछा कि आप ये जो मुझे दे के जा रहे हैं, इससे क्या होगा? क्या मैं अमृत हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। अमृतत्व की तो आशा नहीं है वित्तेन, धन से। मैत्रेयी ने जवाब दिया, ये ना हम नामृता स्याम किम तेन कुर्याम। तो जिससे मैं अमर ही नहीं होंगी वो लेकर क्या करूंगी? आप जहाँ जा रहे हैं वही मुझे भी जाना है। और वो याज्ञवल्क्य के साथ संन्यास लेती है। बहुत सी बातें इससे स्पष्ट होती हैं कि स्त्रियों को भी संन्यास लेने का अधिकार था। स्त्रियों में इतनी विद्वत्ता, इतना ज्ञान था कि वो समझती थी कि वित्त से तृप्ति नहीं होगी, उसे भी अमृतत्व का अधिकार था। तो 1-2 तरह की स्त्रियां उपनिषदों में हैं, एक स्त्री प्रज्ञा या साधारण प्रज्ञा, और दूसरी उसको सद्यो वधु भी कहते हैं, और दूसरी है ब्रह्मवादिनी। गार्गी ब्रह्मवादिनी थी, मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। उपनिषदों में तो ये है, और वेद में तो ऋषिकाएं मिलती हैं और देवियां मिलती हैं। उषा जो है देवी है, सूर्या ऋषिका भी है और देवी भी है, देवता। तो 28 के करीब 30 के करीब ऋषिकाएं मिलती हैं वेदों में, चारों वेदों में, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया और मंत्र का उन्होंने साक्षात्कार। सूर्या सूक्त जो विवाह में मंत्र पढ़े जाते हैं, वे सारे सूर्या ऋषिका के द्वारा देखे गए। तो अमृतत्व की अवधारणा ये वैदिक जीवन दर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष नहीं है, अमृतत्व ही मोक्ष उसका अधिकार है। मोक्ष शब्द ही नहीं मिलता ऋग्वेद में।
केवल एक बार वही जो मंत्र है मृत्युंजय, मृत्योर्मुक्षीय। पर है तो ये दोनों सेम ना? मुक्ति सेम नहीं है। अमृत तत्व इज डिफरेंट फ्रॉम मोक्ष इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड अमृतत्व इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हमें कुछ पाना है, मोक्ष में हमें कुछ छोड़ना है नहीं? मोक्ष का मतलब ही क्या है? छुटकारा, टू एब्सटेन, टू बी रिलीज्ड फ्रॉम समथिंग। और यहाँ पर हमें कुछ पाना है। मोक्ष का मतलब कि हम किसी बंधन में जकड़े हुए हैं और वो बंधन काटने हैं, है ना? पहले बंधन है तभी तो छुटकारा चाहिए। वो बंधन कौन कौन से हैं? शरीर का बंधन है, सुख दुख के बंधन है। पर मैम इज इट लाइक दैट कि मोक्ष इज वन स्टेज एंड अमृत तत्व की प्राप्ति इज अनदर स्टेज? इज इट नॉट लाइक दैट? In the Vedas, we do not find the concept of moksha We only talk about Amrit. because the philosophy of life is very, very positive and robust. भर के खुश होके जीना है और जीने के बाद मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु is not the be all and end all of life. वो तो केवल एक ठहराव है, और जो इसमें हमारे शरीर रूपी भौतिक अंश है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो असली तत्व है, जो अमर है, उसको हम पहचान पाएंगे तो केवल और केवल इसी जन्म में। तो ये जन्म अमृतत्व का अवसर है। एक तो ये आ गया, खुशी मनाने का अवसर है, क्योंकि इसी शरीर में रहकर अमृतत्व की तलाश हो सकती है। और एक है कि ये जीवन एक बंधन है, ये जन्म मरण एक चक्र है, और इससे हमें क्या करना है? छुटकारा पाना। तो दोनों में फर्क है। केवल यहाँ पर मुंच धातु का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। इसी से लोग कहते हैं कि मोक्ष शब्द नहीं है, लेकिन मोक्ष धातु तो आई हुई है यहाँ पर, और कहीं भी नहीं मिलता वेद में। और उपनिषदों में आकर हमें, वहां भी अमृतत्व की बात उपनिषदों में भी है, जो वेद से चली आ रही है। बाद के दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा आई। ठीक है। हमने जो प्रार्थना बृहदारण्यक उपनिषद की है, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। कठोपनिषद कहता है अथ मर्त्यो अमृतो भवति। अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसी शरीर में, अत्र यहीं पर मर्त्य अमृत हो सकता है। मरणशील जीव इसी शरीर में रहकर अमृत हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, क्योंकि यहीं पर ब्रह्म को पा लेता है। और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म को क्या कर लेता है? वही ब्रह्म हो जाता है। कहा है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। वो कुछ पाता नहीं है, कुछ खोता नहीं है, बल्कि जो जान लेता है वही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। केनोपनिषद पढ़ा आपने, वहां पर यही बात बताई है कि पहली बात तो उसको जाना ही नहीं। जैसे हम और चीजों को जानते हैं, ऐसे ब्रह्म को नहीं जान सकते। संसार की चीजों को हम कैसे जानते हैं? ये ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूँ, ये प्रमेय है और मैं प्रमाता हूँ। वो ब्रह्म को जानना है तो वही प्रमाता है, वही प्रमेय है, वही प्रमाण है। इसलिए कैसे जाने उसको? उसको जानने के लिए ना वाणी ना इंद्रियां ये काम नहीं कर सकती। केवल कौन काम कर सकता है? केवल कौन काम कर सकता है?
बुद्धि भी वहां नहीं पहुंच सकती, मनस भी नहीं जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य आत्मा, आत्मा ही आत्मा में, गीता कह रही ना, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः आत्मा रामस्तदोच्यते। आत्मा में ही आत्मा से तुष्ट होता है, तब वो आत्मा राम कहलाता है। तो आत्मा द्वारा आत्मा को जानना है और आत्मा के द्वारा ही जानना है। तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ये सब जो दीवारें हैं ये सब गिर जाती हैं, केवल एक ही चीज रह जाती है। इसलिए जो जानता है, अब वो कैसे बताए, बताने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पर ये सब जो विभाजक दीवारें थी वो गिर चुकी हैं। तो जो जानता है वो बता नहीं सकता, जो बताता है हम जैसा वो जानता नहीं। यही कहा ना, वहां पर कहा यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेदसः। जो कहता है मैं जानता हूँ वो तो कुछ भी नहीं जानता, और जो नहीं जानता वास्तव में वही जानता है। विज्ञातम अविजानताम अविज्ञातम विजानताम, जिसको तुलसीदास कहते हैं ना, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, या कबीर कहते हैं गूंगे का गुड़, कि गूंगा व्यक्ति गुड़ चख लेता है, अब वो बता नहीं सकता कि कैसा मीठा है गुड़ का, नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास बोलने की शक्ति नहीं। बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद का मंत्र है मृत्युरीशे द्विपदाम, मृत्युरीशे चतुष्पदाम। द्विपद कौन है? जिनके दो पैर हैं। मनुष्य सब कैसे हैं? बाइपेड्स है। और चतुष्पद कौन है? पशु। पशु। तो मृत्यु किस पर शासन करती है? दो पैर वालों पर भी करती है और चार पैर वालों पर भी करती है। मृत्यु सबकी शासक है। और कहा यस्य छाया, अमृतम यस्य मृत्यु। ये अलग मंत्र है, ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का 8वां, दूसरे का 33वां है, सॉरी 23 है। 8:2/23। और ये जो है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, ये है ऋग्वेद का 10, 12 और 22। अमृतम यस्य छाया, जिस परमात्मा की छाया अमृत है और जिसकी छाया मृत्यु है। So death and mortality as well as immortality are only the shadows of the divine. यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। उसकी छाया, जैसे एक ही सूर्य चमकता है तो एक तरफ प्रकाश होता है और धूप में ही छाया दिखाई देती है, प्रकाश में ही छाया दिखती है। उसी प्रकार से उसी की दोनों छायाएं हैं। एक छाया अमृत है और दूसरी छाया मृत्यु है। सो दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, अलग नहीं है। जहां मृत्यु है वहीं अमृतत्व है। इसीलिए कहा कि इस देह में रहकर, इस मर्त्यलोक में रहकर ही अमृतत्व की तलाश हो सकती है और उसको पाया जा सकता है। फिर वो जो ईशोपनिषद का है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, विद्यया अमृतमश्नुते। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा
विद्यया अमृतमश्नुते यजुर्वेद के 40वें अध्याय का कौन सा मंत्र है? ये दूसरा या पहला ही है शायद, पता नहीं कौन सा नंबर मुझे याद नहीं। 40वां अध्याय जो है वही ईशावास्य उपनिषद है। अब इसको जरा विचार के देखिए, वो पुराणों में जो कहानियां आती हैं, 14 रत्न निकले, उनमें से एक रत्न क्या था? अमृत था। और अमृत के लिए लड़ाई हुई थी किस किस में? देवताओं में और असुरों में। तो वो तो उसका एक माइथोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कहानी को समझाने के लिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी है दैट हैज बीन इनहेरेंट इन द इंडियन ट्रेडिशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऋग्वेद से लेकर आज तक, मतलब एक जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन फॉर इमॉर्टैलिटी, that has been there in Indian psyche. किसी लिटरेचर में अगर कहीं आपको मिले इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट तो बताइए। वेस्टर्न लिटरेचर में कहीं पर अगर किसी ने पढ़ा हो या ढूंढे उसको, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी, दिस पॉसिबिलिटी ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो लोग बात करते हैं, वो बॉडी की बात करते हैं, एक बायोलॉजिकल बॉडी, isn't it? एक मेटाबॉलिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया जाता है, लेकिन इस बॉडी के अंदर रहने वाला वो सूक्ष्म तत्व जिसको न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न बोला जा सकता है, और जो एक फ्लेम की तरह से इसको प्रकाश दे रहा है और जो इसके उपरांत भी सदा सदा के लिए रहेगा, उस तत्व की तलाश, उसकी प्राप्ति के बारे में संभावना ये बताना, ये मृत्युंजय। एक तरफ कहा मृत्यु बंधवो मनवः, कि मनुष्य तो मृत्यु के बंधु हैं, मृत्यु उनका भाई है, बंधे हुए हैं मृत्यु से। मृत्यु बंधवो मनवः, एक तरफ ये कहा, और दूसरी तरफ क्या कहा? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः मृत्यु बंधवो मनवः। इसका रेफरेंस ले देती हूँ, ऋग्वेद का 8, 18, 22। बंधवो मनवः, बंधु शब्द जो है, बंधु का प्लूरल है बंधवो। मनवः, मनुष्य मृत्यु के बंधु हैं। बंधु कौन होता है? जो बांध लेता है। तो मनुष्य मृत्यु से बंधे हुए हैं। बंधु से ही हमारे मित्र, बंधु, बांधव ये शब्द भी बने, क्योंकि वो भी स्नेह से बांध लेते हैं। तो उसका जो डेरिवेटिव मीनिंग है कि मनुष्य मृत्यु से बंधे हुए हैं, और दूसरी तरफ उसको संबोधन कर रहे हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। ये भी ऋग्वेद का है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 13वें सूक्त का पहला मंत्र। सभी अमृत की संतानों शृण्वन्तु, सुनो। तो मृत्यु से बंधे भी हुए हैं और अमृत की संतान भी हैं। दोनों में देखने से क्या लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, बट देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज ऑन द वन साइड they are tied to mortality, on the other hand they can transcend mortality and reach out to immortality. Not everybody can, but those who identify themselves with the immortal. एक ही प्रकाश में छाया भी है और प्रकाश भी है। आप जिस तरफ देखेंगे वही आपके ध्यान में आएगा। अगर आप उस छाया की तरफ देख रहे हैं, काले उसकी तरफ, बिंब की तरफ, तो आपका ध्यान वहां रहेगा। लेकिन यदि आप प्रकाश की तरफ देख रहे हैं तो आपको वो छाया नहीं दिखाई देती। तो ये दोनों ही स्थितियां सत्य हैं और मनुष्य इनके बीच में है। तो लक्ष्य क्या है जीवन का? जो मिला है वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जो अभी नहीं मिला लेकिन हम उसे पा सकते हैं, उसके लिए हमें अपना ध्यान, अपना विचार, अपना मन कहाँ केंद्रित करना है?
कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। यदि मैं शरीर हूँ तब तो मेरा नाश निश्चित है। सारी गीता तो यही सिखा रही है ना, पूरा दूसरा अध्याय तो यही उपदेश है कि आत्मा का नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। तो वस्त्र बदलने जैसा है। अब ये जो विचारधारा, ये दृष्टिकोण भारत में रहा है। जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे वे भी इस विचार को जानते थे, जानते नहीं थे, अपनाते थे जीवन में। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि हमारा विचार, हमारी जो धारणा है वो देह तक केंद्रित हो गई, इसलिए सारा जो कॉन्सेप्ट उनके यहाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वेस्टर्न फिलॉसफी में लीनियर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन वेस्टर्न थॉट इज लीनियर, इट्स वर्टिकल, कि जो अभी है बस वो अभी है, एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। बट द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज साइक्लिकल, कि जो गया है वो फिर वापस आएगा और जो अभी है ये जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पर मृत्यु कोई शोक का विषय, तभी भगवान कृष्ण कहते हैं अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। तो जो शोक कर रहा है वो किन चीजों के लिए, वो शोक के योग्य ही नहीं है। ये जो गीता की दृष्टि है, गीता उपनिषदों का सार है और उपनिषद किसका सार है, वेदों का सार है। तो एक ही विचारधारा कंटिन्यूअसली चल रही है लाइक अ थ्रेड, लेकिन उस थ्रेड को कहीं आकर जो अभी मॉडर्निटी के नाम पर हमने उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से भुला दिया। क्योंकि जो एंशिएंट इंडियन थॉट है उससे हमारा पूरी तरह से वो हो गया, विच्छेद कट गया है। तो जब क्योंकि अभी जब जैसे किसी की डेथ होती है घर में तो ये हस्बैंड, बेटा, पिता यही बोलते हैं मेरा क्या होगा, इतनी जल्दी चला गया, बच्चे कैसे बड़े होंगे। वो सब तो स्वार्थ है ना, इट्स फ्रॉम ए स्वार्थ एंड अटैचमेंट, दैट्स वेयर कौन किसी आसक्ति के लिए और होता है, स्वार्थ। दोस्त सबको नहीं, अपने लेकिन हालात में दूसरी रोना तरफ होगा। ये भी कहते हैं ना कि कोई तो किसी के साथ तो जाता नहीं, न जा सकता। जीवन वो है ना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में है। कोई किसी जीवन और मरण किसी का साथ बंधा हुआ नहीं। प्रत्येक जीव के अपने कर्मों का जो लेखा है उसी के अनुसार उसका जन्म है और उसी के अनुसार उसके जीवन का। तो जितना उसका कर्म भोग था उसने भोगा, जहाँ तक उसका हमसे संबंध जुड़ा हुआ था वहाँ तक वो हमारे साथ है। महाभारत में बहुत सुंदर एक बिंब आता है, वो कहते हैं कि जैसे पानी में एक लकड़ी का दो लट्ठे तैर रहे हैं और वो तैरते तैरते कभी पास आ जाते हैं और कभी दूर हो जाए। यथा काष्ठम च समेयातां महोदधौ समेत्य च व्यपेयातां तद्वद भूत समागम। अभी ऐसा नहीं, जब मेरी मदर की डेथ हुई और मेरे जो गुरुजी थे वो आए, उन्होंने ये श्लोक मुझे सुनाया और समझाया। अब पढ़ा तो हमने भी है लेकिन वो ऐसा दिमाग में छप गया वो श्लोक कि बस जी, यथा काष्ठम च, एक काष्ठ और दूसरी काष्ठ, काष्ठम च समेयातां महोदधौ, सागर में जैसे वो पास आ जाती हैं, समेत्य च व्यपेयातां, और पास आकर फिर क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तद्वत भूत समागम, वैसे ही जीवों का परस्पर मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। और कितना सत्य है, मतलब इतनी बड़ी बात को कितने सरल शब्दों में और कैसे, बिल्कुल वो लकड़ी के दो लट्ठे, लॉग्स ऑफ वुड, दे कम टुगेदर एंड देन दे आर सेपरेटेड जस्ट बाय द फ्लो ऑफ वाटर। आपकी उस किताब में है ये कहीं पे, किसमें, जो जन्म और मृत्यु वाली जो किताब है उसमें है ये। तो ये मतलब अलग अलग हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि मोह नहीं, वही जो महाभारत के दूसरा मैंने बताया था, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युम आपद्यते मोहात्। अगर मोह से हम ग्रसित हैं, धृतराष्ट्र किससे ग्रस्त है, वो आंख से अंधा नहीं है, वो मोह से अंधा है। तो वो भी सिंबॉलिक है, आंख से अंधे होने से नुकसान नहीं है, लेकिन वो जो मोह से अंधा है कि उसको और कुछ दिखाई नहीं देता,
गीता का पहले ही श्लोक में वो क्या कहता है, मामकाः पांडवाश्च, डिवीजन कर दिया वहाँ पे। मेरे और पांडु के पुत्र, तो उसका भाई है और वो कह रहा है मामकाः, मेरे पुत्र। तो वो मोह जो है ना, सारे महाभारत की जड़ तो वही है। तो ये जो मोह और विवेक, ये दो है ना, तो मोह से सर्वनाश होता है और विवेक से हम उन्नति की ओर जाते हैं। बहुत अच्छा एक अथर्ववेद में और भी इसमें कहा है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, अथर्ववेद का है ये भी। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। अभी तो आजकल उद्यान किसको कहते हैं, गार्डन को, लेकिन उसका जो लिटरल मीनिंग है उद्यानम, ऊपर जाना। हे पुरुष, तेरा उद्यान हो, ऊपर की ओर जाना हो, न अवयानम, नीचे गिरना नहीं। अथर्ववेद का 8वें अध्याय का पहले सूक्त का 6ठा मंत्र, 8:1-6, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हे पुरुष, तेरा उद्यान, यू हैव टू ascend and not to descend. You are made to ascend and not to descend. तुझे ऊपर जाना है, नीचे नहीं गिरना है। वही जो जीवन की परिभाषा हमने देखी, आरोहणम, चढ़ना है, गिरना नहीं है। और गिरना तो बहुत आसान है, अगर एक बार गिराया जाए तो वो फिर अपने आप ही चीज गिरती चली जाती है। चढ़ने के लिए हर कदम उठा के चढ़ना पड़ता है, गिरने के लिए तो एक बार धक्का मारो तो बस फिर वो गिरता ही चला जाता है। पानी के लिए कहा है ना कालिदास ने कि जो चित्त वृत्तियां हैं वो पानी की तरह अगर नीचे गिरती चली जाएं तो वो गिरती ही चली जाती है। पयश्च निम्नाभिमुखम हृदि कई सिद्धार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च। कुमार संभव में पार्वती तब निर्णय कर लेती हैं कि शिव जी तो मान नहीं रहे हैं, वो विवाह करना चाहती हैं और शिव जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो तो समाधि में, स्वीकार किया, वो तो बैठे हुए हैं समाधि लगा के, और कामदेव को भेजते हैं देवता जो है कि जाइए आप इनकी समाधि भंग कीजिए। समाधि भंग कर दी, शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव क्या हो गया, भस्म हो गया। अब उसकी पत्नी विलाप कर रही है, रति जो है वो विलाप कर रही है, लेकिन कामदेव, इसीलिए वो अनंग हो गया, उसके अंग सब नष्ट हो गए। अनंग होकर भी वो अपना करता रहा जो भी जोर लगा सकता था, लेकिन पार्वती ने कहा कि अब मैंने तो जो निश्चय कर लिया वही होगा और मैं शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। तो उन्होंने तपस्या का निर्णय लिया कि ठीक है, इस रास्ते से नहीं, अब दूसरे रास्ते से देखती हूँ कब तक शिव की समाधि भंग नहीं होती। तो वो तपस्या करती हैं, करने का निर्णय लेती हैं और अपने माता पिता के पास जाती है। पिता कौन है उनके, हिमालय पर्वत राज हिमालय। पिता के पास नहीं जाती, पहले वो अपनी माँ के पास जाती है, मीना, और माँ उसको समझाती है कि बच्ची तेरा शरीर इतना कोमल है और कहाँ वो तपस्या, शिरीष पुष्पम न पुनः पतः, कहाँ तेरा ये कोमल शरीर और कहाँ वो कठोर तपस्या। शिरीष का फूल इतना कोमल होता है कि भंवरा उस पर बैठ जाए वो तो ठीक है, लेकिन एक पूरा पक्षी आकर उस पर बैठेगा तो वो फूल तो मुरझा जाएगा। तो उस पार्वती ने जो जवाब दिया कि अब मेरे मन का निश्चय कोई बदल नहीं सकता। कई सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः, कालिदास कहते हैं जिसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे तो ये पाना ही है, कोई उसको बदल नहीं सकता। पानी अगर ऊपर से नीचे गिरने लगा है, अब पानी का प्रवाह कोई ऊपर तो नहीं ले, पानी हमेशा किधर गिरता है, अग्नि हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है और जल हमेशा अधोमुखी होता है। तो क ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपयेत्। कौन उलट सकता है, कोई नहीं उलट सकता।
उसी प्रकार से मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य दोनों तरफ जा सकता है। अग्नि ऊपर जाती है, जल नीचे जाता है। मनुष्य ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी गिर सकता है। बड़ी बड़ी कहानियां आप देखते हैं ना, ऋषि तपस्या कर रहे हैं और तपस्या भंग हो जाती है। शकुंतला तो पैदा ही ना होती अगर विश्वामित्र ऋषि की तपस्या भंग ना होती, तो तपस्या भी भंग हो जाती है। मनुष्य देवता से, इसीलिए वो दानव भी बन सकता है, मानव तो है, और वो देव भी बन सकता है। देव, मानव और दानव, ये जो 3 लोक हैं, ये तीनों लोकों में ही सारा कुछ है, सारा ब्रह्मांड है। नीचे का जो अधोलोक है वो दानव लोक है, और जो मध्य भाग है वो मानव लोक है, और जो ऊर्ध्व भाग है वो दिव्य लोक है। तो मनुष्य इस के तरह पास से शकुंतला का भी कर्म बंधन होगा विश्वामित्र और मेनका के साथ? क्या हुआ? कोई कर्म बंधन होगा? बिल्कुल, माता पिता कि हो माता तभी पिता तो को बन, बने? कर्म के बिना तो कुछ तो भी तपस्या तो नहीं। भंग होनी थी बिल्कुल अगर उसने आना था तो। बिल्कुल, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उसको उस ढंग से भी सोच सकते हैं। लेकिन बहुत से ऋषियों की तपस्या भंग हुई। हाँ। अब वो जब तपस्या भंग होती है तो इंद्र जी जो है उनका सिंहासन डोलने डोल लगता जाता है। ये सब पुराणों की कहानियां हैं। तो पुराणों में इनको सरल बनाकर कहानियों की तरह बताया गया, लेकिन यहाँ पर उनको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में या उनको इम्पर्सनल फॉर्म में, मतलब यहाँ पर्सनल वो नहीं है, पर्सनलाइज्ड गॉड नहीं है, पर्सनलाइज्ड स्टोरीज नहीं है। इसीलिए वेद के बारे में 2 व्यूज हैं, वेद में हिस्ट्री है या नहीं है, और अधिकांश लोग यही मानते हैं, विच इज मोर रैशनल, और मैं भी वही मानती हूँ कि वेद में इतिहास नहीं है। लेकिन एक वर्ग है जो कहते हैं कि वेद में इतिहास है, और अगर इतिहास है तो फिर तो वो एक काल विशेष का ग्रंथ है, वो मतलब एक सार्वकालिक और सार्वभौम ग्रंथ। इतिहास है तो इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन होना नहीं, चाहिए। फिर तो वो किसी टाइम से रिलेटेड हो गया ना, फिर तो किसी खास स्पेस, किसी खास टाइम का है। लेकिन वेद इम्पर्सनल हैं, अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय हैं। वो लोग कहते हैं वेद में भी, वो भी 2 मत हैं, पौरुषेय है और न्याय वाले वैशेषिक वाले तो पौरुषेय मानते हैं, मीमांसा वाले अपौरुषेय मानते हैं, वेदांत अपौरुषेय मानता है। इन सब पे डिबेट्स वो एक अलग वो दर्शन में है। हम ये बोल सकते हैं, जैसे अभी आपने देव, मानव और दानव बोला है, जैसे हम सब जितने भी लोग हैं आसपास रहते हैं, 4-5 हजार 10,000 लोगों से हमारा संपर्क रहता है, तो उन्हीं में से कुछ लोग देव की तरह व्यवहार करते हैं, कुछ दानव की तरह, कुछ मानव के तरह विवेकशील होते हैं, पर वो व्यवहार दानव का करते हैं। हम 5,000 की बात ही ना करें ना, हम अपने को ही देखें। हम अपने को ही देखें। किसी क्षण किसी के साथ हम ही दानव हो जाते हैं, और किसी के साथ हम देव रहते हैं, और कभी कभी मानव रहते हैं। मानव तो हम हैं, जन्म तो मानव का मिला है, और वाकई में अपने आप को एनालाइज करें तो एक तो अलग अलग लोगों के साथ हमारी प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार अलग होता है, अलग अलग समय पर हमारा मूड अलग अलग होता है। और ये सारा फिर आ जाइए, अभी जो आप योग पढ़ेंगे तो सांख्य दर्शन के जो 3 गुण हैं, जब हमारे अंदर सत्व गुण प्रधान होता है तो हम देव हैं, जिस समय सत्व और रज सक्रिय हैं तो हम मानव हैं, और जब तम ने आकर सब कुछ ढक दिया तब हम ही दानव बन जाते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों हैं। और बृहदारण्यक में या किसमें एक कहानी आती है ना, प्रजापति के पास देव और दानव गए, कि हमें तीनों ही गए, देव, दानव और मानव, कि हमें शिक्षा दीजिए। अब पुराने उपनिषदों के जो आचार्य हैं वो 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं देते थे, तो 3 लोग मिलके गए कि हमें शिक्षा दीजिए, और उन्होंने क्या बोला, सिर्फ एक अक्षर बोला, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद क्या बोला, द और द, बस इतना ही बोला। अब कुछ समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन वो शिष्य कैसे थे, साधारण नहीं थे। उन शिक्षा क्या है, ये उपनिषद की शिक्षा का उदाहरण है। शिक्षा व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और अक्षमताओं का बोध कराना है। अगर व्यक्ति में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी योग्यता और अयोग्यता को समझ सके, यही शिक्षा, उसे इस काबिल बना देना कि वो समझे मुझ में क्या कमी है और क्या मेरे अंदर गुण है। प्रजापति ने जब बोला तो देवताओं ने क्या समझा, वो समझ गए कि हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, दाम्यत,
देवताओं ने समझा हम बहुत इंद्रियों के पीछे भागे रहते हैं विषयों के सुख में। प्रजापति हमें कह रहे हैं रेस्ट्रेन योरसेल्फ, दमन करो, दाम्यत। मनुष्यों ने क्या समझा दान करो। कि हम अपने ही अपना पेट भरते रहते हैं। प्रजापति कह रहे हैं दत्त, दान करो। और दानवों ने क्या समझा कि दानव क्या करते हैं, जैसे आपने कहा, वो दूसरों को कष्ट देते रहते हैं, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। तो उन्होंने समझ लिया क्या करो, दयाध्वम, दया करो। तो प्रजापति ने कुछ नहीं बोला, अपनी प्रकृति के हिसाब से उन्होंने मतलब दिया। क्लास में जो टीचर होता है वो तो एक ही चीज पढ़ाता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी बैकग्राउंड, अपनी अपनी एप्टीट्यूड और अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको समझता है। वही हुआ कि उन्होंने तो एक अक्षर बोला, इसको कहते हैं एकाक्षर विद्या, एक अक्षर से ही विद्या दे दी। लेकिन तीनों ने समझ लिया कि हमें क्या उपदेश दिया गया है। तो वही व्यक्ति जो अपनी अक्षमता को समझता है वही वास्तव में सच्चा शिष्य है। बुद्धि का श्लोक भी तो है ना इसका? कौन सा? वितरति गुरु प्राज्ञ उसका भी है, यास्क ने भी कहा है, यास्क ने निरुक्त में भी कहा है कि कई तरह के शिष्य होते हैं। तो जो स्नातक वाली बात है ना, कि कुछ तो पानी में यहाँ तक डूबे रहते हैं, कुछ यहाँ तक डूबे रहते हैं। बस यही। तो आप लोग अब कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। दाम्यत दत्त दयध्वम। देवता क्या करते हैं? देवता किसको कहें? जो भोग विलास में लगे रहते हैं। इसलिए उन्हें समझ आ गया कि हमें क्या संदेश दे रहे हैं प्रजापति, कि दमन करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, रेस्ट्रेन योरसेल्फ। मनुष्य क्या करते हैं? वो केवल अपना ही स्वार्थ देखते रहते हैं, अपने लिए संग्रह करते रहते हैं। तो उनको समझ आया कि प्रजापति कह रहे हैं दान करो, दूसरों को भी दो, बांट कर खाओ। और दानव दूसरों को कष्ट देकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि हमें ये दानवों में भी इतनी मतलब मॉरलिटी जिंदा थी कि वो समझ गए कि हमें कहा जा रहा है दयावान। तो दानवता का स्तर भी बदलता रहता है हर युग में। तो मतलब दया करो। आजकल तो दानवता का तो कोई लेवल वो ही नहीं है। 20 साल के एक लड़के की कहानी कल पढ़ी होगी आप सबने, जिसने क्या 8 बच्चियों के साथ कुकर्म किया और वो कह रहा है आई जस्ट डिड इट। 3-3, 4-4 साल, 20 साल का लड़का है वो। तो ये दानव का भी पता नहीं कौन सा स्तर है। ते के न जानी महे। बस वही है। पुत्र पुत्रा, हाँ, विश्वे यानी ऑल ऑफ यू, अमृतस्य पुत्राः, सन्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, सन्स ऑफ डिवाइन, शृण्वन्तु, सुनो। I call upon you all to hear me. Who are you all? You are the sons of immortality. So all of you, there is no Hindu, no Muslim, no Christian, no caste, no creed, nothing. All the human beings are the progeny of divine. Rigveda. और पूछना है किसी को? वो शायद बुक सेलर आया हुआ है, तो आप लोग बुक्स दे दीजिए। ले आओ, किताबें लाए हो? तो आज बिजली जी योग सूत्र कराएंगे ना। ये एक पुस्तक है जिन लोगों को लेनी है, जिसमें वेद के छोटे छोटे वाक्य हैं और उनका हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। और वो लाए वेद के सेट, वो किसको चाहिए? ये तो मेरे पास है। दिखाना जी वाले। हाँ सेम है। जो वेद के वो वो सेट का पूरा, वो तो पैक्ड है, बहुत बड़ा बड़ा डब्बा है। अच्छा पूरा पैक है। आप छोटा छोटा मेरी
हाँ वो कितना बड़ा है वो? एक तो मैं उस दिन लाई थी, मैंने घर पे दे दी ना, छोटी छोटी आप किताबें वो दिखा हैं? दे रहे हैं। हाँ। But you said ना the entire Veda Entire वो yes वैसे brought। कितने आपके पास? तो वो 5 सेट्स लाए हैं ये, इसको भी लेना है। छोटा छोटा तो इसमें वो तो कंप्लीट सेट ऑफ वेदास ये तो सिलेक्शंस हैं। How many books, ma'am? 28 है कितनी है? एक मैम वो पूरा उसमें ट्रांसलेशन पूरा है, वो तो पूरा बॉक्स बंद है। उसमें सर कैसे हो, क्या लेके आई है यहाँ? नहीं देती सभी बहुत अच्छा बता देती है सब ये ठीक ना इस बार जो अभी मेरा मेरी गाड़ी मेरा जो भी है और ये क्या किताब है? चार उसमें संस्कृत के वर्ड्स का भी मीनिंग है धातु के साथ है। वो पीछे नोट्स में है। मैम इसमें सब वेदों में से ये है। हाँ सब This is only one book या पूरा सेट लेना? नहीं ये तो एक ही है ना। कितना है ये? कितना है इसका? ये तो सस्ता है क्योंकि 1000 कॉपीज छपी। 200 वो कितने वो पर्चा दिखाओ उसका। वो वाला वो complete वाला है। आप वो लेना चाहते वेद का कंप्लीट सेट, ये 5 ही सेट लाए हैं वो पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन चारों वेदों का। वो बाहर बहुत बड़े बॉक्स है ना, वो कितने का पड़ेगा वो? संस्कृत पूरा रोमन सारे एंड वेद वाला कितने का पड़ेगा? कॉस्ट का ये है। तुम्हारा कितना वो लगा है लाने का खर्चा इनका है, कितना लगा है तुमने? तो पूरे 5 डब्बे उठा All your studies going on. 2200 रुपए में दो, ताकि तुम्हारा जो वहाँ से अभी हम और भी मंगाएंगे। पहले हमने यहाँ भी मंगाए हैं 2200, 2000 उन्होंने लगाए हैं। लेकिन अब ये तो लेके आप लोग सब जाते एक एक जना लेने, वो मिलेगा भी ना। पूरा सेट किताबें दे दीजिए। वो इसको दे दीजिए, दे दीजिए वो। मैम वो हिंदी में ही इंग्लिश में। वो किन्होंने किया है? ये मंदिर में जो लोग ला सकते हैं वहाँ से वो 2000 में शायद मिल जाए, मिलेगा कि नहीं पता। कहाँ से मिलेगा? मंदिर में But that's good to understand it. पूरा सेट है। अच्छा सुनो, वो हिंदी भी लाए हो वहाँ से? नहीं हिंदी वो इंग्लिश लाया।